कॉलेज को बीते साल हो गए। सबके जीवन में कितने बदलाव हो गए। आज उन्हीं यादों को जीने के लिए बेकरार है हम। आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए तैयार है हम। अ A very वेरी warm वार्म good गुड morning मॉर्निंग everyone. एवरीवन। आज का ये इवेंट एक सिंपल सा रीयूनियन नहीं, पर ये एक मौका है आपके लिए फिर से रिकनेक्ट, रीलिव एंड रिजॉइस करने का, दोस्तों के साथ बनाई हुई यादें याद करने का, टीचर्स के साथ वो बॉन्ड दोबारा बनाने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन इमोशंस, उन मेमोरीज को दोबारा याद करने का। जो कॉलेज के दिनों में हमने बनाई है। Respected chief guest, guest of honor, deputy director ma'am, principal ma'am, esteemed faculty members, our beloved alumni and dear students. On behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, मैं अर्पिता और मैं सचिन, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। welcome to the alumni meet of 2026. Are you all excited to feel the nostalgia? दीप प्रज्वलन ज्ञान और प्रगति का प्रतीक है, तो चलिए हम इस रोशनी के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। I request the chief guest, Ms. Anupama ma'am, our deputy director Sanjana ma'am, principal Anita Rai ma'am, and HODs of all departments to please kindly come up on the dais for the auspicious lamp lighting ceremony. Please welcome them with a huge round of applause. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। Now, I would like to invite our respected Deputy Director, Mrs. Sanjana Mittal ma'am, to deliver the welcome address. Please welcome ma'am with a huge round of applause. Good morning, everybody. Still, you are now part of alumni team of Ashtavakra. So, on behalf of that is Ashtavakra Institute, I welcome you all over there to this alumni meet. Distinguished alumni, esteemed faculty members, dear students, and honored guests over here, it's my great privilege and heartfelt joy to welcome you all to the alumni meet of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. Today, it is not merely a gathering, it's a celebration of legacy, learning, and lifelong connections. Each one of you carries a piece of this institution in your journey, and in turn, you enrich our story with your achievements and experiences. As we come together, we are reminded of a simple yet profound thought. Education is not filling of a pail, but the lightning of the fire. That fire, once ignited here, continues to guide you in your personal and professional lives. विद्या वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है. Ashtavakra Institute has always strived to be that deep, illuminating minds and shaping futures. Another beautiful line that reminds me is, जहाँ चाह है वहाँ राह है. Where there is will, there is a way. Ashtavakra Institution was founded on the values of integrity, curiosity, and resilience. Over the years, we have witnessed our students grow into the leaders, innovators, compassionate individuals, as you can see all sitting on the dais. Your journey inspires our current students and reaffirm our belief that true education extends beyond classrooms. As it is often said, success is not final, failure is not fatal. It is the courage
to continue that counts. I would like to take a moment to acknowledge the role of our faculty members who have tirelessly dedicated themselves to nurturing talent. Their commitment ensures that every student not only learns but also discover their potential. गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं. Dear alumni, you are our ambassador across the world. Your successes are our pride, and your challenges are reminders of the evolving world we must prepare our students for. We encourage you to stay connected, to mentor, and to collaborate. Your guidance can shape the next generations in ways that textbooks never can. Let us all remember, alone we can do very little, but together we can do so much. As we look towards the future, Ashtavakra Institute remains that committed to excellence and innovations. We aim to create an environment where ideas flourish and individuals thrive. With our continued support, we can build a stronger, more vibrant community. As we say, निरंतर प्रयास की सफलता की कुंजी है. Great things never come in a one single day. In closing, I extend my deepest gratitude to all of you for being here today. Your presence makes this occasion truly special. Let us all celebrate not just where we have been, but where we are going to go together. And this is what we are aiming for. Welcome you all once again, and I wish you a memorable and inspiring alumni meet today. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your wise words. विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ मानसी और कशिश को सरस्वती वंदना के लिए. May I request everyone to kindly stand up for our national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी
सदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Now, I would request Deputy Director Sanjana Mittal ma'am and Principal Anita ma'am to come on the stage to felicitate our chief guest and alumni. Our chief alumni for today is Miss Anupama Gupta ma'am, who is HOD of MBCN Noida. We are honored to have Anupma Gupta ma'am. She was an alumni over here in 2014. She did her D.Ed from here only, and she did her B.Ed in ASD from here only. As a teacher, she served over here only, and now she is standing amongst you. So can we have a big round of applause? It's an inspiration. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request Dr. Priyanka from Kriya Foundation. So Priyanka ma'am, as you are seeing, she is an alumni student of ours from the batch 2016. Can we have a big round of applause for ma'am? Actually, we can welcome. It's an exercise for us, but it's a motivation for the second years and for you people also. Now, I would like to request Mr. Udit Yadav, founder of Sankalp Foundation, on the stage. Next, I would like to call Mr. Himanshu, the founder of Rise Up Academy, to come up on the stage. Huge round of applause. Now on stage, I would like to welcome Mr. Rahul and Miss Shivani, founder of Recreational Therapy Center. It's so nice that is when we see our children flourishing with different colors. It is not necessary that we have only that is teachers, Ashtavakra producing teachers. We have the people, they are opening up their centers own and they are running. So a big round of applause because it's not easy to open their own centers. We do really appreciate your award, this thing, efforts that because of which क्योंकि एक therapy center चलाना इतना easy नहीं होता है ना, lot of hurdles. Very nice to see you. I now request Miss Komal and Miss Farheen, who are both assistant teacher at JPM Senior Secondary School, to take the center stage. Please welcome them with a huge round of applause. Fareen and Komal, both of them, they have done their D.Ed from here and both of them, they served the institution after pursuing their diploma over here. They were appointed as special educators over there and now in the government sector, both of them as a teacher over there. So a big round of applause for them. I now request Miss Anupama Gupta ma'am, who is the head of department Center for Autism and Academic Wing NIOS, MBCN. She is a special educator and a parent of a neurodiverse child with over 20 years of experience in autism education and teacher training. She holds BSc, Diploma and Bachelor's in Autism Spectrum Disorder, AMED, and a Master's in Social Work. She taught B.Ed and D.Ed special education students like us for over 10 years and has been actively involved in CRE programs, Guru Govind Singh Indraprasth University examinations, NSS initiatives,
At MBCN, she leads the Center for Autism at the Udan Academic Wing, focusing on inclusive learner-centered practices. Over to you, ma'am. ऑफ कोर्स 2012 से पहले एक हाउसवाइफ थी, पेरेंट थी, 2 बेटे हैं मेरे, एक न्यूरो डाइवर्स, एक न्यूरोटिपिकल, छोटा बेटा ऑटिज़म है उसे, तो इसीलिए दिमाग में था कहीं ना कहीं कि ऑटिज़म क्या है एक बार जानना तो ज़रूर है। बड़े बेटे का 12th हुआ, सारा बताऊंगी जैसे मैम ने कहा, मैंने और मेरे बेटे ने साथ में डिप्लोमा किया ASD में, और बहुत ही कंफर्टेबल था मेरा बेटा मेरे साथ, ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहा, और आज तक हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और टचवुड ऐसी ही रहेगी। खैर, हमने इकट्ठे एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे ये था कि समझ के घर बैठ जाएंगे, 2 साल बहुत है, कोर्स करो। लेकिन मेरी जो वहाँ पे उस टाइम HOD थी मधु मैम, अभी भी हैं, आपके दूसरे इंस्टीट्यूट में हैं, बहुत से लोग शायद जानते भी हैं उन्हें, तो वो मेरी जो मेंटोर थी, वो एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ नॉलेज, सब कुछ उन्होंने दिया, विजडम सब कुछ। और डायरेक्टर थे डॉक्टर अनमोल अरोड़ा। तो जब मेरा 2014 में पूरा हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बोला कि मुझे यहीं पे साथ में कि आप यहाँ पे एज अ लेक्चर ज्वाइन कर लो। मुझे पहले लगा कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन दोनों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया और कर पाई। 1 साल बाद मधु मैम चली गई तो D.Ed की HOD बनने का मौका मिला, 16 में B.Ed आया, B.Ed का HOD मिलने का मौका मिला, साथ में संजना मैम भी हमारे आ गए, तो धीरे धीरे सबने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और आज वही चीज़ जो 2012 में की थी और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो ये जो जर्नी रही है मेरी इतनी लंबी छोटी जो भी समझिए, तो मतलब कॉन्फिडेंस जो ये सारा आया कहीं ना कहीं अष्टवक्र का दिया हुआ है। इससे पहले अगर आप कोई मुझसे कहते कि मैं खड़े होकर एक लाइन भी बोल लूँ तो शायद बोलना इम्पॉसिबल था। ठीक है, टीचर को अगर रिस्पेक्ट करोगे, समझोगे, तो बहुत कुछ उनसे लोगे। आज इस चीज़ को कभी भी फील नहीं करोगे। बड़े होके जब देखना चाहोगे अपनी पास्ट लाइफ में, तो ना कुछ नॉलेज होगी, ना एक्सपीरियंस, ना कुछ समझ। अगर रिगार्ड कर लोगे तो एक अच्छा आप उनकी ब्लेसिंग भी लोगे, सब चीज़ें लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इतना ऑनर किया कि आज एज अ चीफ गेस्ट मुझे यहाँ बुलाया। तो ये कहीं ना कहीं अष्टवक्र का ही दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास जो भी है। मतलब मधु मैम कहती थी यहाँ अष्टवक्र में काम कर लो, ओवरऑल पूरा इतना अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा कि हर जगह आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, काम कर सकती हो। और ये चीज़ देखा और सीखा मैंने, और एक्चुअली आज जो यहाँ मैं हूँ और इतना अप्रिसिएशन ले रही हूँ, तो वो अष्टवक्र का ही दिया हुआ है सब कुछ मेरे लिए। नो डाउट मेरा स्टाफ, मेरे कुलीग सारे, चाहे छोटे हो बड़े हो, सब मुझसे छोटे ही थे मैं सबसे बड़ी हूँ। आई एम 55 और बताने में शर्म नहीं है, 55 साल की हूँ तो हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये है, बहुत कुछ दिया अष्टवक्र ने मुझे, और आज जो मैं खड़ी हूँ, मुझे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे अच्छे दिया अष्टवक्र ने, क्योंकि जब मैंने B.Ed D.Ed में साथ में क्लासेस ली तो एक्चुअली बहुत अच्छा मुझे स्टूडेंट मिला। गॉड ग्रेस ASD के स्टूडेंट बहुत अच्छा है मेरे पास, IDD के भी, इवन स्नेहा जो कि मतलब ऑनलाइन क्लास में LD की स्टूडेंट थी और ASD ज़्यादा समझ गई। LD पता नहीं, LD भी समझी है हमारी, क्योंकि स्टाफ बहुत अच्छा है। अनुष्का मैम, सिल्की मैम उस टाइम थे, दोनों बहुत अच्छे, लेकिन उसने ASD में सारे आंसर दिए। मेरे ASD के स्टूडेंट मुझे आंसर नहीं करते थे, बट LD वाली स्नेहा फटाफट आंसर करती थी। मैंने कहा चल एक को तो समझा लिया, काफ़ी है टीचर के लिए इतना ही बहुत है जितने समझ जाए। देखो खैर मजाक था, हम सबके लिए पूरी मेहनत करते हैं, चाहते हैं सब स्टूडेंट सब कुछ ले, लेकिन जितने भी ले लेते हैं तो बस उसमें से अगर 2-4 भी ले लेते हैं, लगता है सफल हो गया हमारा कहना और बोलना। एज अ पेरेंट हूँ, कुछ ज़्यादा ही बोल जाती थी। मेरे बच्चे और जानते हैं, उदित स्टूडेंट रहा है वो भी जानता है, झाड़ भी बहुत खाई है इन्होंने, बट टचवुड मेरे स्टूडेंट तब भी बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, तो बहुत सपोर्टिव है तब भी और आज भी। तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है अपने सबके साथ। गीता मैम से बहुत सपोर्ट मिला, सबसे ही, इवन मेरा पूरा स्टाफ हुआ तो सब ने बहुत अच्छे से किया। ऑफ कोर्स संजना मैम ने NSS की इतनी अच्छी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इवन प्री RD परेड में मैं 2019 कब की बात है मैम, हम 2022 में, यस मैम को याद है, 2022 में 9 डेज़ में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्री RD का कैंप में था। मैम ने भेजा मुझे एज अ, मुझे मौका मिला जाने का, तो ठीक है। बाद में 2023 की जो परेड होती है 26 जनवरी की रिपब्लिक डे में, उसमें ASD की B.Ed ASD की दीक्षा अलावत NSS में थी और उस परेड में वो गई। तो ये बहुत अचीवमेंट था हमारे अष्टवक्र के लिए, और मतलब ये चीज़ें बहुत सारी दी है मुझे अष्टवक्र ने। चलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, ma'am, for those motivating and heart-touching words.
I now request Dr. Priyanka ma'am, who is an ENT surgeon and first board certified behavior analyst in India. I would request all of you to please maintain decorum and please stay silent while our alumni speak about their experience. Now, I would like to welcome Dr. Priyanka ma'am, who is an ENT surgeon and first board certified behavior analyst in India and Diploma Special Education in Autism Spectrum Disorder. She has been working for 21 years in voice disorder, speech, communication and serving behavior needs of children with neurodevelopmental delays. A surgeon by training, she has presented and published in neurolaryngological speech disorder at the National Institute of Health, Bethesda, MD, USA, and internationally in the field of applied behavior analysis. Her teaching in medicine, education, and behavior analysis, especially of scientific theories of behavioral learning. Her interest and expertise is in communication in children with neurodiverse needs and behavioral difficulties. She is the founder and director of KRIA, a center for research intervention with analysis which runs behavioral early intervention services for children. Over to you, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीबडी मैम प्रिंसिपल मैम बोलती है तो चुप तो होना ही पड़ता है बट आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द अष्टवक्र फैकल्टी कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ लाके एक डायस पे बिठाया. हम लोग अपना सर्टिफिकेशन कर रहे थे टू सर्व चिल्ड्रन एंड टुडे द इंस्टीट्यूट इज़ टेलिंग अस सिट ऑन अ डायस एंड इंस्पायर ईच वन ऑफ यू to do better for children. तो आज आई थिंक अनुपमा मैम ने बहुत बताया कि अष्टवक्रा ने उनको क्या दिया. अष्टवक्रा ने मुझे नॉलेज दी बट उसके आगे एक सर्टिफिकेट दिया जो RCA ऑफ इंडिया अप्रूव करता है आपको एक अच्छा एडुकेटर मानने के लिए. तो आप लोग जो सारे यहाँ पे आई थिंक एलुमनाइज ही हैं तो आप लोगों के पास एक लाइसेंस है. जैसे एक जेम्स बॉन्ड के पास लाइसेंस टू किल होता था ना, वैसे आप लोगों के पास एक लाइसेंस है टू मेक स्पेशल एजुकेशन बेटर इन दिस वर्ल्ड. यूज़ दैट सर्टिफिकेट वेरी वेरी वेल एंड वेरी स्मार्टली. तो अष्टवक्रा को तो ऑफकोर्स थैंक यू है ही, और आप लोगों को और भी बड़ा थैंक यू है फॉर टेकिंग दिस कोर्स, getting that certificate and actually stepping into this world to help children with special needs. It's very difficult, it is very hard, it is not enough money, it is not enough gratification. As a ENT डॉक्टर मैं 4 दवाई लिखती थी और मरीज़ ठीक होके चला जाता था और ज़िंदगी भर मुझे याद रखता था. जहाँ मैं जाती थी वहाँ वो खड़ा होके मतलब एक सलाम तो ठोक ही देता था. लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर व्हेन वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन वी आर इम्प्रूविंग वन स्टेप वेरी स्मॉल स्टेप्स. अ पेरेंट इज ऑलवेज वरिड. तो वो जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन डॉक्टरी में था वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन स्पेशल एजुकेशन में नहीं है. लेकिन अगर मैं देखूं कि क्या अब जो डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकती हूँ, वी आर 190 चिल्ड्रन बिग, वी आर about 100 therapists big. We have educated ABA में हम लोग अपना मेन फोकस मानते हैं. We have educated more than 500 students across India. तो आप सोचिए 500 लोग अगर 6 बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं तो एक आदमी जब वो बात मान ले कि मैंने ये करना है ज़िंदगी में, वो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है. ये पावर एज अ एलुमनाई आप लोगों के पास है. ये छोटी पावर नहीं है, हर किसी के हाथ में नहीं होती, और एक ऐसी पावर जो कि आम दुनिया एक्चुअली उठाना ही नहीं चाहती. इट इज़ नॉट ईजी. एज शी सेड, वी हैव सो मेनी यंग पीपल हियर हु हैव ओपन सेंटर्स एंड इट इज़ नॉट ईजी. Every day is a struggle in money, in resources, in people wanting to learn. आधे लोग सुन रहे हैं, आधे लोग नहीं सुन रहे, लेकिन जो सुन लेंगे वो लोग अपना सेंटर खोलने में ज़्यादा कामयाब होंगे. वो लोग उस ऊंचाई पे चढ़ने में ज़्यादा कामयाब होंगे. वो लोग उन हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदलने में ज़्यादा कामयाब होंगे. सो टुडे आई थैंक यू ऑल फॉर चूजिंग दिस एंड बीइंग माय alumni. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Priyanka ma'am.
and I was not aware that you are from medical fraternity and you are cleared, you are from ENT department. ENT surgeon. So a big round of applause. The people who are from medical field, it's not easy. It's burning themselves. I know when you enter into the medical field, it's not very easy to clear the examination, to be a part of that surgery train. हाँ, उस सब चीज़ों के बाद she has opted for the special education and she is into it and she is working day and night for that. So we want these kinds of peoples to come forward. And I look forward for you, ma'am, getting associated with Ashtavakra institution. We have a big open heart for you anytime, anything you require, you are an advisory member from today. ठीक है, सो अ बिग राउंड फॉर मैम बिकॉज मेडिकल फर्टिलिटी जब हमारे साथ जुड़ जाए आके ना तो हम चमत्कार कर सकते हैं. इट्स नन देन कि मेडिकल से कम नहीं है ये जो हम कर सकते हैं. ठीक है, सो वंडरफुल. हाँ, मुश्किल है मेडिकल से, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे मैम ने कहा ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं रोज, बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मेडिकल के छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये रोज के, और इतना बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है जो कि इतना बड़ा अपलॉड हो. लेकिन आप सबको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज यू हैव चूजन द स्पेशल एजुकेशन फील्ड. वंडरफुल पीपल. Thank you again, Dr. Priyanka ma'am, for sharing your wonderful experience with us. A huge round of applause for Priyanka ma'am. Now, I would like to request Mr. Udit Yadav sir to come on stage. He's a special educator and behavior therapist and director of Sankalp, a center for children with special needs. Over to you, sir. हेलो एवरीवन. अष्टवक्रा से मैंने 2019 एंड 2021 में अपनी स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट की, और मेरे मेंटर्स थे हसीब सर, अनुपमा मैम और मधु मैम. इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सींचने की कोशिश की और मैंने भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, और बहुत अच्छे से मैंने अपने स्पेशल एजुकेशन को निभाया. और मैं इस फील्ड से नहीं था. आई एम 37 करेंटली, एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए लाइफ के अंदर. और मैं एक एक्टर था. मैंने थिएटर में अपने ज़िंदगी के 4 साल दिए. मैंने BPOs करे, बट मुझे कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली. एंड स्पेशल एजुकेशन के बाद मैंने जब यहाँ से सर्टिफिकेशन की, मैंने डॉक्टर प्रियंका को ज्वाइन किया क्रिया सेंटर में. और हसीब सर, अनुपमा मैम, मधु मैम के बाद डॉक्टर प्रियंका मेरी मेंटर रही, और जो कुछ भी मैं हूँ आज मैं अपना सेंटर खोल पाया हूँ तो मेरे टीचर्स अष्टवक्रा और प्रियंका मैम की वजह से खोल पाया हूँ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 37 इयर्स ओल्ड हूँ, और मैंने बहुत सारे काम किए लाइफ में. मुझे कहीं पे भी एक सुकून नहीं मिला काम करने में, जो कि मुझे इस फील्ड में आकर एक सुकून मिला. डॉक्टर प्रियंका ने ग्रेटिफिकेशन की बात करी कि डॉक्टरी के अंदर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, बट स्पेशल एजुकेशन के अंदर, बिहेवियर थेरेपी के अंदर वो ग्रेटिफिकेशन आपको ग्रेजुअली मिलता है. वो ऐसे मिलता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द चाइल्ड्स लाइफ, बट उस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर भी आप बहुत सारे डिफरेंसेस लेकर आ रहे हैं. तो डॉक्टर प्रियंका कहती हैं ऑटिज्म कॉल्स यू. मुझे नहीं पता मेरी जर्नी यहाँ तक मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आई. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं स्पेशल एजुकेशन में आऊँगा या फिर मैं एक बिहेवियर थेरेपी के अंदर आऊँगा, बट बिलीव मी, एक्टिंग में करता था उसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आया. मुझे BPOs में मैंने पैसा भी बहुत कमाया, बहुत सारी चीज़ें की, बट उसमें जो सुकून था वो नहीं था. और आज जब मैं लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंसेस लेकर आ रहा हूँ, अभी मेरा एक न्यूली ओपन सेंटर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फाउंडर संकल्प. सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू शेयर द स्टेज विद द फैकल्टी मेंबर्स, विद डॉक्टर प्रियंका, विद अनुपमा मैम एंड विद संजना मैम. आई डोंट नो, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मैं सेंटर खोल पाया हूँ और 1 साल हुआ है मुझे सेंटर को ओपन किए हुए. 2025 में अप्रैल में ही किया था, और अभी अप्रैल हुआ है तो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल हुआ है.
और अभी तक 1 साल के अंदर मैं 22 फैमिलीज के अंदर डिफरेंस ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। और थैंक यू। मैंने स्क्रैच से हमारे बच्चे होते हैं नॉन वर्बल और वर्बल, हम कैटेगराइज कर देते हैं नॉन वर्बल वर्बल, तो हम उनके साथ अकॉर्डिंगली काम करते हैं कि नॉन वर्बल के साथ नॉन वर्बल काम होगा और वर्बल के साथ वर्बल। बट मैंने कोशिश करी नॉन वर्बल को वर्बल करवाने के लिए, और मैं अभी तक, आपको बिलीव नहीं होगा, अराउंड 9 स्टूडेंट्स को मैं स्क्रैच से, वो जिप लॉक आए थे, एक 9 साल का बच्चा आया था और 6-6, 7-7 साल के बच्चे जो नॉन वर्बल, आज तक कुछ एक शब्द नहीं बोले थे, आज वो सेंटेंसेस में बोल रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप किसी के अंदर ऐसा डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, तो मनी तो ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं उसके साथ एक मनी मिलता है आपको, लेकिन जो वो डिफरेंस आप लेकर आ रहे हैं, वो आपको जो इनर एक पीस देता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। और मैम ने बात करी डॉक्टरी की, मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग डिफरेंसेस लेकर आ रहे हैं, आप लोग डॉक्टर्स से बड़े हैं, तो आपको बहुत थैंकफुल रहना चाहिए, भगवान ने आपको इस फील्ड के लिए चुना और आज आप स्पेशल एजुकेटर्स हैं, आपके थ्रू कितनी सारी फैमिलीज के अंदर एक डिफरेंस आने वाला है। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड कंटिन्यू द गुड वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू। Thank you so much, Udit sir, for your kind and motivating words. We have a vast selection of super talented alumni gathered here today for this event. But now I would like to introduce Ms. Shweta Raghav, who is a lecturer in special education, intellectual disability. Shweta ma'am is teaching in the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disability, Noida. She specializes in intellectual disability with over 10 years of experience. Alas, Shweta ma'am couldn't make it to the event today, but she has sent her video experience to share with all of us. I request the console to please play the video sent by her. एज अ लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सभी अष्टावक्रा की टीम को, हमारे डीन डायरेक्टर सर राम कैलाश सर को और संजना मैम को, जिन्होंने मुझे आज जो एलुमनाई मीट है उसमें इनवाइट किया और मुझे अपनी स्मृतियों में याद रखा। तो लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिल कर के। और अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट के में जैसे आप लोग आज एलुमनाई मीट में शामिल हुए हैं, ऐसे ही मैं भी अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट में 2013-14 बैच में मैंने जो है शुरुआत की थी। बीएड स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेरा जो है कोर्स रहा था, और 1 साल कैसे निकला कुछ कह सकती हूँ पता ही नहीं चला। बहुत ही स्मूथ जो है जर्नी रही थी अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट की। कुछ केसेस मिले मुझे जिनके साथ मैंने काम किया, और स्पेशल आर्ट स्कूल जो पुराना नाम है, जिसका भी नाम अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट है, इनका जो स्पेशल स्कूल था, यहाँ पे जो मुझे केस अलॉट हुए थे मल्टीपल डिसेबिलिटी में, एक अरोड़ा स्टूडेंट्स था, वो मुझे अलॉट हुआ था, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स जो है वो भी मैं आपको भेज रही हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया था। तो उनके सोशल इंटरैक्शंस, ग्रीटिंग्स, सोशल स्किल्स पर जब मैंने काम किया, उस टाइम पर मुझे इस कोर्स की उपयोगिता समझ आई, जिसे मैंने बहुत गहराई से जाना, और यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी रहा, जिसमें मुझे समझ आया कि ये कोर्स कितना ज़रूरी है मेरे लिए भी, औरों के लिए भी। और बहुत अच्छा रहा अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट का सफ़र। अगर मैं अपने मोमेंट्स को बताऊं तो अनुभूंज फेस्ट उस टाइम पर शुरुआत था गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर, जहां पर मैंने सरपंच का रोल किया था। उसकी भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने आप लोगों के लिए भेजी है। चाहे सरपंच का किरदार हो या भोली दीदी का किरदार हो, बहुत ही अच्छे से हमने जो है अपने इन पलों को महसूस किया, पलों को याद किया। और चैलेंज की अगर मैं बात करूं, कोर्स के टाइम पर जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज आया था, तो वो आया था अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। जब हम स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उस टाइम पर हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हमें
उद्वेलित करते हैं, इतना आंदोलित करते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि समाज हमारे साथ क्या कर रहा है, बच्चों के साथ क्या कर रहा है। लेकिन फिर अपने आप को समझाया और एक मार्गदर्शन दिया कि ये क्यों ज़रूरी है कोर्स। और उस मोमेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि अवंतिका चौक पे आशा किरण स्कूल में हमारे अष्टावक्रा ने इंस्टीट्यूट ने हमारी इंटर्नशिप लगाई थी। पूरा 1 महीने वहाँ बच्चों को बहुत बारीकी से जाना और डायरेक्शंस मिली टीचर्स की, जिसके बाद ये कोर्स जो है मैं पूरा कर पाई। बताने में मुझे खुशी ये बहुत ज़्यादा हो रही है कि मेरा कोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया था, उससे पहले ही मुझे गाज़ियाबाद के एक नॉन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ लेक्चरर पोस्ट के लिए आमंत्रित किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट मेरा आया नहीं था, उससे पहले ही मेरे पास जॉब थी। तो ये एक मेरे लिए बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत ही अच्छा सफ़र जो है शुरुआत थी। तो लास्ट में क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, चाहे कॉन्वोकेशंस के मोमेंट्स हो, चाहे फ्रेशर हो, फेयरवेल हो, लेकिन वो सब ना बता करके मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, ज़रूर आप बहुत अच्छे जो है पदों पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर जो है जा रहे होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं जो भी इस कोर्स में हैं, आप स्किल डेवलप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। जितने स्किल्स आप पे डेवलप होंगे उतने ही ज़्यादा स्किल्स पर आप काम कर पाएंगे। और दूसरी बात, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे इस फील्ड के लिए। तो घबराहट ना लेकर के एक दृढ़ निश्चय करके कि कोर्स में आ गए हैं तो अब कुछ अच्छा ही करना है, ये लेकर के आपने अपने आप को आगे लेके चलना है। और लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट में जो हमारे सबसे वरिष्ठ सर थे। I now request Mr. Himanshu Verma, who is a dedicated special educator with formal training in D.Ed Special Education. He is the founder of Rise Up Academy Center, committed to supporting diverse learning needs and creating inclusive classroom environments that help every student reach their potential. Over to you, sir. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं पहले आप लोगों की तरह यहीं साथ में बैठा रहता था। मैं 2021-23 का स्टूडेंट रह चुका हूँ यहाँ पे। आप लोगों की तरह मैंने भी जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा तो मैं सोचता था कि कैसे मैं अपना एक सेंटर स्टार्ट कर पाऊँगा। विकास सर एंड संजना मैम की मदद से मैंने अपना खुद का एक सेंटर स्टार्ट करा है शाहदरा में। इसे भी रन करते मुझे अप्रॉक्स 3 ईयर्स हो चुके हैं और इसमें मैं नॉर्मल एंड स्पेशल दोनों चाइल्ड को एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर पिछले 2 साल से मैं वहाँ पे रन कर रहा हूँ उसको। मैं चाहूँगा आप लोग भी इस तरह से सभी टीचरों की हेल्प से आप अपना भी एक खुद का सेंटर स्टार्ट करें और स्पेशल बच्चों की हेल्प करें। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir, for your motivating words. Now, I would like to request Mr. Rahul and Shivani, founder of Recreational Therapy Center, Saket, to welcome on stage. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको पता है हमने सेंटर ओपन किया है। हम पहले यहाँ पे स्टूडेंट ही थे डीवी डिपार्टमेंट से। 2021 टू 2023 के स्टूडेंट हैं हम। विकास सर के अंडर थे। विकास सर और हरीश सर के हमारे मेंटर्स रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया है कि आगे कैसे बढ़ना है। हमारी जर्नी एज ए होम सेशन की तरह स्टार्ट हुई थी। शिवानी मैं एक सेंटर में वर्क किया था मैंने, और स्कूल में भी वर्क किया था। हमने काफ़ी होम सेशंस किए, देन हमने स्कूल भी ज्वाइन किया। तो हम साकेत में होम सेशन करते थे, तो हमें वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। तो शिवानी और मैंने 1 ईयर से काफ़ी पैसे कलेक्ट करके देन हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो अब धीरे धीरे हम आगे रन कर रहे हैं। थैंक यू। और ये सब सिर्फ विकास सर की गाइडेंस और संजय मैम की गाइडेंस से हो पाया है। अगर हम यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लेते तो ये सब पॉसिबल था ही नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट हमारे साथ विकास सर एंड संजना मैम थी जिनकी गाइडेंस में हम इतना बड़ा सेंटर ओपन कर पाए हैं। रिसेंटली हमारे पास 20 अबव स्टूडेंट है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उनके साथ वर्क कर रहे हैं एंड इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आई है।
थैंक्स टू अष्टवक्रा एंड विकास सर एंड संजना मित्तल मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir and ma'am, for sharing your wonderful experience with us. A huge round of applause, please. I would like to request Miss Komal, who is an assistant teacher of JPM Senior Secondary School for the Blind under the aegis of Blind Relief Association and Department of Education. Please welcome ma'am with a huge round of applause. गुड मॉर्निंग एवरीवन. डाइस पे बैठे सभी अधिकारियों को, सभी को मेरा नमस्ते. आप सभी को भी. हम यहाँ से पास हो गए थे 14 से 16 वाले बैच में. मैंने डिप्लोमा किया था. कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हमें याद किया जाएगा. हम ही याद करते थे. कई बार सर आते अपने बच्चों को लेके. हमारे BRA में मैं जॉब करती हूँ, JPM स्कूल में. ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है और वहाँ पे सर कभी कभी ट्रेनिंग के लिए, विज़िट के लिए बच्चों को लाते हैं जब हमारी मुलाकात होती है. पर अब ओनर के लिए सर ने बुलाया है तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं चूकूंगी नहीं. आज तक के जितने भी मुझे सारे टीचर्स ने पढ़ाया था उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ. जिसने मुझे सबसे पहले, जो सबसे पहला टीचर होता है वो हमारी माँ होती है. सबकी माँ सबको बिगनिंग में चम्मच से लेके पेंसिल पकड़ना तक सिखाती है. मैं प्रिपरेशन के साथ नहीं आई हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. और फिर उसके बाद स्कूल एंटर करते हैं, फैमिली मेम्बर्स सब हेल्प करते हैं. 12th तक पहुँच जाते हैं, हमें पेरेंट्स पीछे पड़ते हैं, टीचर्स डांटते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. हम उस टाइम पे हमें लगता है कि हो जाएगा, सब हो जाएगा. पर जैसे ही हम 12th पास करते हैं, सबसे बड़ी बात जब होती है कि अब क्या करें. अपने हरियाणवी में कहते हैं ना, धरती बीड़ी पड़ जाती है, ये करे के. तो वही हुआ. 12th पास कर ली मैंने साइंस स्ट्रीम से. उसके बाद अब कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं. डॉक्टर जैसी इतनी इंटेलिजेंट मैं थी नहीं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं. पर मैं बायोलॉजी से पढ़ी हूँ, बट खुद को पता होता है ना कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी. पर नर्सेज के लिए पापा फॉर्म भर रहे थे तो वो मैं नहीं बनना चाहती थी कि मुझे हॉस्टल में जा के रहना पड़ेगा या नर्स बनना पड़ेगा. मेरी मम्मी टीचर है स्कूल में, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ. तो मेरा मन टीचिंग में ही था. तो किसी ने मेरे पापा को बताया स्पेशल एजुकेशन के बारे में. नया कोर्स था, जब तो 14-16 में किया था तो बहुत जल्दी था. अब तो सबको पता है, कॉमन है और वैकेंसी भी ज़्यादा निकल रही है तो लोग भाग भाग के करते हैं. जब तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते थे और सबके माइंड में एक ही था, स्पेशल एजुकेशन मतलब पागल बच्चों को पढ़ाना. हमारे घर में भी मैंने मतलब कुछ लोगों ने या रिलेटिव्स ने कहा, हंस के भी कहा या टॉन्टिंग वे में कहा कि कोमल तो ये कोर्स करेगी. पर जब मैंने कोर्स में एडमिशन लिया, वो होता है ना, एक मेरी टीचर थी 12th क्लास में जो मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती थी. उनकी कभी कभी हमारे साथ एक्स्ट्रा क्लास लगती थी क्योंकि मैंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था होम साइंस. उन्होंने मुझे बोला, पता नहीं उनसे क्या अटैचमेंट थी, कि कोमल जो भी करना चाहे मतलब उस रेस में मत दौड़ो जिसमें सब दौड़ रहे हैं, थोड़ी अलग रेस में दौड़ो जिसमें कम लोग जाएंगे और उसमें अपने 100% दो तो तुम पक्का 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 सक्सेसफुल होगी. फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है यहाँ पे. वहाँ पे भी सेम लाइन गुप्ता सर ने कही कि कई बार जो हमारे कोर्स होते हैं वो शादी की तरह होते हैं. मैं खुद ये बात अब जो 12th के बच्चे पास करते हैं ना, उन्हें यही बोलती हूँ कि कई बार हमें हमारी पसंद के कोर्सेज नहीं मिलते, पर जो मिलते हैं अगर उसमें हम 100% करते हैं तो हम इतना निखर के आते हैं कि कोई जवाब नहीं. टीचर्स हमें एक कुम्हार की तरह गढ़ते हैं. यहाँ पर जब मैं आई, डर लग रहा था, नया कोर्स था कि क्या होगा क्या होगा. रेनू मैम हमारी कोऑर्डिनेटर थी, मैं VI से हूँ. और जब हमारी कोऑर्डिनेटर मैम रेनू मैम थी, उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा था कि मैं फर्स्ट डे से इतने मन से पढ़ी. उन्होंने बिगनिंग में ही हमें टेलर फ्रेम, अबेकस वगैरह सिखाया, तो उसमें इंटरेस्ट ऐसा आया. मैं एवरेज स्टूडेंट थी 12th तक, मोर देन एवरेज होगी, मतलब 60, 70, 75% लाने वाली, कोई टॉपर नहीं थी. पर उन्होंने, और फिर सेकेंड ईयर में हमारे राम सर और संदीप सर दोनों आ गए थे. इनसे मैंने पेशेंस सीखा.
कि कोई बच्चा कितना भी शैतानी कर रहा हो ये कभी गुस्सा ही नहीं करते थे। जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हमारी क्लास में भी बच्चे ना पीछे बैठ के यूं ही बोलते रहते थे। इनके फेस पे भी कभी गुस्सा नहीं दिखता था कि वो गुस्सा ही करें, हंस के आराम से बेटा पढ़ लो या सुन लो यूं कह देते। और ये बहुत ज़रूरी भी है स्पेशल एजुकेशन में कि आपके पास पेशेंस हो। तो इन सब ने मुझे बहुत गाइड किया, इन सब की बदौलत ही आज मैं यहीं हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा डिप्लोमा पूरा हुआ, मैं नीचे स्कूल में अष्टवक्रा में मेरी जॉब लगी। संजना मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था और फिर मेरे को कॉल आई, कोमल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम नीचे स्कूल में पढ़ाओगी एज अ स्पेशल एजुकेटर। मैं वीआई से थी तो हमारी ट्रेनिंग भी सारी वीआई स्कूलों में ही होती थी, पर यहाँ पे मुझे मिक्स बच्चे मिले जहाँ पे मुझे मल्टीपल बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। सॉरी गलत वर्ड निकला, स्पेशल एजुकेटर होके भी। तो फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ मेरी जो हेड थी वो प्रिंसिपल मैम मीनू मैम थी और काफ़ी सारे मेरे स्टाफ मेंबर्स भी यही हैं जिनके साथ मेरे पुराने कोलीग्स विकास सर, प्रदीप सर, मनीष सर, लीलाधर सर और जेपी सर, किसी का नाम भूल गई हो तो सॉरी, पर उन सबको दिल से थैंक यू। उन सब ने मुझे खूब गाइड किया। मैं छोटी थी इन सब से, ये सब मेरे से सीनियर थे। इन्होंने मुझे सब बच्चों के साथ कैसे करना है, क्या काम करना है, मैं सीधा जाके कहती थी दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक ऑटिज्म में एक टीचर थी, वो जब भी मुझे बताती रिलैक्स कोमल होता है ऐसे ऐसे करना है। मेरी फ्रेंड मनीषा वो सीपी से थी, हम दोनों मतलब जहाँ कोमल वहाँ मनीषा, हमारी क्लास भी साथ में रहते थे लोग। तो उसके बाद मेरी कॉल आ गई 2017 में, मेरी ज्वाइनिंग हो गई जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। और आज मुझे 9 साल हो गए हैं वहाँ जॉब करते हुए। मैं 20 साल की वहाँ पे जॉब लग गई थी। उसके लिए मैं सभी टीचर्स को जिसने मुझे प्राइमरी से लेके आज तक पढ़ाया है, मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ के बोल पा रही हूँ। और साथ ही साथ अब आफ्टर मैरिज भी मेरी फैमिली अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब भी मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स सो नाइस कोमल, आप किसी को भी नहीं भूले है ना, अपने गुरुओं से लेके अपने फर्स्ट पर्सन आई हैव सीन जिन्होंने अपने चेयरपर्सन के भी वर्डिंग्स को ध्यान रखा। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो बिहाइंड माय कर्टन्स हैं आर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरमैन सर, ठीक है, उनकी वर्डिंग्स इनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हम अभी नहीं याद करते लेकिन धीरे धीरे जब हमारी जिंदगी में होता है तो वो रिकॉल करते हैं हमारे पास, ठीक है। एक और बात रह गई, सॉरी। जब हम पढ़ते थे मेरी सीनियर फरीन मैम, जिन्हें मैं फरीन दी ही बोलती थी, अपने सारी सीनियर्स जितनी भी थी हम उन्हें दीदी बोलते थे, तो ये भी मेरे साथ ज्वाइन हुई 2017 में। कभी मुझे लगा ही नहीं नए स्कूल में जाके कि मैं नए स्टाफ में कैसे कोऑपरेट कर पाऊंगी, कैसा लगेगा कैसा नहीं। मेरी अपनी मेरे साथ थी और ये आज भी मुझे उतना ही सपोर्ट करती है बिगनिंग से जैसे करती थी। थैंक यू। Now, last but not the least, I would like to welcome Miss Farheen ma'am, who is also an assistant teacher at JPM Senior Secondary School for the Blind under the care of Blind Relief Association in Department of Education. कोमल मैम ने अभी काफ़ी कुछ बता दिया है। सेम हमारा कोर्स था, फर्स्ट वीआई बैच में मेरा एडमिशन हुआ। अभी यहाँ रेनू मैम प्रेजेंट नहीं है। मेरी काउंसलिंग, मेरा एडमिशन सब में स्टार्टिंग से रेनू मैम थी। फिर मेरा 13-15 बैच में एडमिशन हुआ वीआई में, एंड देन मैंने उसके बाद जॉब किया अष्टवक्रा स्पेशल स्कूल में अंडर दी गाइडेंस ऑफ संदीप सर, रेनू मैम, संजना मैम वहाँ पर थे। मुझे मतलब करिकुलम, बियॉन्ड दी करिकुलम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सब लोगों के साथ। और यहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट हूँ मैं, यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, यही बहुत ही मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच मैम for inviting us, or on behalf of all the members, thank you very much Ashtavakra, thank you very much ma'am, thank you very much, thank you. You know, we've Ashtavakra for one thing that was कि मैंने यहाँ से knowledge ली, and knowledge मेरे पास बाहर से भी थी because I did my course from America, लेकिन अष्टवक्रा ने मुझे actually हाथ दिए। मैंने किया D.Ed, मेरे बाद 4 of my therapists did D.Ed from here and enhance their knowledge. उसके बाद यहाँ से जो recruitment हुआ, I have Asif here in the audience.
ही इज़ बीन विद अस फॉर 4 years. उदित भी उसी के साथ आया था, उसकी जस्ट बाद आई थिंक. एंड मुझे एक्चुअली अष्टवक्रा ने हाथ दिए, you know. So if I had the brain, I got people who I could give this knowledge to and the hands to work with children, जो कि एक्चुअली एक सेंटर के लिए शायद सबसे ज़रूरी है. तो आज मैं इस ऑडियंस को कहती हूँ कि बी दोज हैंड्स फॉर एवरीबडी दैट यू कैन बी. एंड एक मेंटर से अच्छा कोई नहीं है जो आपके हाथ को मल्टीपल हैंड्स बना सके. सो थैंक यू अष्टवक्र अगेन. Ma'am, it's very beautifully said that leaders create leaders. So Ashtavakra is one that legacy जो छोड़ के जाता है, that you also create such kind of leaders in the life. ठीक है? And beautifully जो आज platform है यहाँ academicians का, उसको देख के we feel very honored that you are doing wonderful work wherever you are. Thank you so much, ma'am. I now request our rehab psychologist, Ms. Shubh Gulati ma'am, to brief us about the clinical psychology department. A very good afternoon to everyone present here. So I am Shubh Gulati. I'm a consultant clinical psychologist and faculty at Ashtavakra Institute. And I'm very honored to share with you all the launch of 2 of our new academic courses that we will be starting at Ashtavakra Institute. So हम BSc in clinical psychology and MA in clinical psychology, which is approved by Rehabilitation Council of India, we will be starting with these courses from this academic year, which is 2026 July. And we have 20 seats for BSc Clinical Psychology, and we have 10 seats for MA Clinical Psychology. For the eligibility criteria for BSc, so those who have done their 12th class from science background, they should have a minimum 55% in their 12th board exam. They can enroll for this course. Other than that, for masters, all those who have done a 4-year program in BA or BSc psychology or clinical psychology can enroll with us in the MA clinical psychology. And after the completion of MA clinical psychology, they will be given RCI license of a clinical psychologist. So they can start their practice as a clinical psychologist. इसके अलावा we have also started our clinical psychology OPD at Ashtavakra Institute, and we are also offering internship programs at Ashtavakra for students who want to pursue or do internship in psychology background. They can get associated with us, they can collaborate with us. We are very happy to collaborate with all of you or your students further, या फिर आपके कोई जान पहचान में जो psychology field में BSc, MA या कोई internship हमारे साथ करना चाहते हैं, we are very happy to collaborate with them. So we are catering all kinds of population, चाहे वो बच्चों की बात करें या adult population की बात करें या फिर older generation की बात करें, हम हर तरीके की population को cater कर रहे हैं. We have all kinds of assessment for autism, ID, SLD, और न्यूरो के लिए भी हमारे पास सारे असेसमेंट्स हैं. वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट, वी हैव टेस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ असेसमेंट्स, वी हैव प्रोजेक्टिव टेस्ट, रोशाक, TAT, and we are also providing with all kinds of therapies at our institute. So we welcome you all. If anyone wants to join, I'm here, you can come and discuss with me. Thank you so much. I'm very proud over here to announce this, that it's the only first institution, that is Ashtavakra इंस्टीट्यूशन, जिन्हें इस साल में RCI से MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी मिला है. अ बिग राउंड फॉर अप्लॉज फॉर द टीम अष्टवक्र. जो भी हमारे कुलीग्स हैं, जिसमें से अभी मैम खड़े हैं, शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल स्माइल बिकॉज हर हार्ड वर्क इज रिफ्लेक्टेड एट द बैक. ठीक है, तो जो भी हार्ड वर्क किया, इट्स नॉट इजी. आप सोचिए, हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, और बाकी सब जगह भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ी जगह है. उतनी बड़ी जगह ना होने के बाद भी आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर हैविंग दिस सेंटर, एंड वेरी सून वी आर बी गोइंग विद द PGDRP program also, post graduation program, post graduation diploma in rehabilitation psychology. Not only this, I take one more moment of yours, and I would like to share one more thing, that our sister concern, it's a history made, that our sister concern very near to us, that is 500 meters ahead,
the second institution of RCI has opened, and with the MA Clinical Psychology, 10 seats more. Only 10 seats are there, but it's a legacy in RCI that we are opening 2 centers. None other institution has been awarded this thing. And through this platform, all the alumni are here. This is from, I don't know, I have not taken permission from my chairman, sir, but respected chairman, sir, will never say no to it. जितने भी आज हमारे alumni यहाँ पे, in case if you require any kind of awareness program or any kind of that is testing to be done, this is from my side that 40% discount would be given on any test to the alumni students who come to us. Any kind of internship or anything, if you come to us, a special concession would be given to our alumni students. So thank you so much for us, and we want all of you to be a part of this. अब तक हम लोगों ने ओल एलुमनाइज के बारे में सुना, जो यहाँ से एजुकेशन लेकर के अष्टवक्र का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहे हैं। लेकिन क्या बात उन एलुमनाइज की जाए जो अष्टवक्र से पढ़ करके यहाँ पे हमें रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और हमें एजुकेट करते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज आवर ओन डियर मिस्टर रमेश सर, हु इज एन एलुमनाई ऑफ अष्टवक्र इंस्टीट्यूट। I now request Vikas sir to please step up on the stage. I now request Bhumika ma'am to step up on the stage. Preeti ma'am, please come up on the stage. Poonam ma'am, please come up on the stage. Geeta ma'am from special school, please come up on the stage. I now request our very own Hasib sir to please step up on the stage and accept the facilitation award. It's a tradition of Ashtavakra institution जो आपको आज स्टेज पे सारे दिख रहे हैं. They are the ones who have been the toppers of the institution. हर टॉपर को हम यहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं. It was a tradition जो हमने एक पॉलिसी ली थी, हर टॉपर को we give them the preference to join Ashtavakra institution. So all these ones who are जो आपको दिख रहे हैं आप स्टेज के ऊपर, they are the hard workers जिन्होंने इस फील्ड में जी जान से मेहनत की है. So a big round of applause for all the faculty members of Ashtavakra Institute. Lastly, I would like to request Sneha ma'am to come upon the stage. Our dear faculty, Lilyadhar sir and Sandeep sir are not available with us at the moment. But please show a huge round of applause for them. Hasib sir will take the trophy of Sandeep Tiwari sir.